फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या है? इट इज मेंट टू कंजर्व द प्रेगनेंसी. Because of observing 3 cyanotic months or 3 menstrual courses, the paternity of the child, if the woman is quick with child, then the paternity of the child can be determined. ठीक है, there will not be any confusion with regards to the paternity of the child. ठीक है, so इद्दत का सोल पर्पस यही है, to conserve the pregnancy. अगर वो प्रेग्नेंट है, if कहते हैं ना, if the woman begets any child, so who will be the real father of the child? Who will be the father of the child? This is the purpose of observing iddat. हाँ, पूछो सिद्धार्थ. सर क्लियर है आगे समझ. ठीक है, लिखो बता इसको. दिया. हाँ, हाँ जी सर. so iddat is a period. Please write down, iddat is a period. Iddat is a period when a wife on divorce, or when the wife on divorce or on death cannot enter into another marriage, comma, the purpose of iddat is to conserve the pregnancy. The purpose of iddat is to conserve the pregnancy so as to conserve the paternity of the child, that is if the girl is already pregnant from the former husband, if the girl is already pregnant, girl mat likho, woman likho, if the woman is already pregnant from the former husband and she gets remarried to some other person, and she gets married to some other person, then there will be a doubt regarding the paternity of such child. The observance of iddat will ensure such paternity of child. The observance of iddat will ensure such paternity of the child. ठीक है, पैरा चेंज करिए. In case of divorce, the iddat, the iddat period is 3 menstrual courses of women. The iddat period is 3 menstrual courses of women. And if she is not subject to menstrual cycle, then it is 3 lunar months. Or 3 synodic months. Then it is 3 lunar months or 3 synodic months. That is 29.5 days.
ठीक है. If the woman is pregnant, if the woman is pregnant, then iddat gets extended. Then the iddat gets extended up to the time of delivery of the child, up to the time of delivery of the child, up to the time of delivery of the child, or till the termination of pregnancy, till the termination of pregnancy, till the termination of pregnancy. ठीक है, फुल स्टॉप. इसी पॉइंट में लिखो however if such delivery is terminated, however if such delivery, लिखो आप however such delivery or termination, if however such delivery or termination takes place, such delivery or termination takes place before the completion of iddat, यानी कि 4 महीने 10 दिन पहले ही टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, then iddat will lapse then itself, then and there. iddat will lapse there, then and there. ठीक है. In the case of death, ठीक है, फिर से बता रहा हूं. देखो, डाइवोर्स के दोनों केसेस हो गए, ये वाला केस हो गया. अब हम डेथ का पढ़ते हैं. डाइवोर्स ये और ये. ठीक है, इसी में एक क्रूशियल पॉइंट है, दैट इज प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर 4 months 10 days. ठीक है. In case of death, okay, in case of death, iddat is 4 months 10 days. 4 months 10 days from the date of death, up till the delivery of the child, date of death, or up till the delivery of the child, or termination of pregnancy, However, if delivery or termination takes place, before 4 months 10 days, delivery or termination takes place before 4 months 10 days, still the iddat will continue till 4 months 10 days. डेथ के केस में पूरी इद्दत ऑब्जर्व की जाएगी. ठीक है, डेथ के केस में पूरी इद्दत ऑब्जर्व की जाएगी. ओके, भले ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज बीन, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड और टर्मिनेशन हैज बीन डन बिफोर 4 months 10 days. ठीक है. सो डाइवोर्स के केस में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देयर एंड देन. डेथ के केस में 4 महीने 10 दिन. ठीक है, तो लिख लीजिए. Thus in the case of death of the husband, observing the iddat of 4 months 10 days is mandatory. Observing the iddat for 4 months 10 days is mandatory, as it is considered. ये मैं कुरानिक लॉ की बात कर रहा हूं. ठीक है, कोडिफाइड लॉ की बात नहीं कर रहा हूं. As it is considered that the wife has to show respect, as it is
as it is considered that wife has to show respect, wife has to show respect to the, wife has to show respect, wife has to show respect to the deceased husband. ठीक है, मैं जो विवाह की बात कर रहा था ना, वो जो माइग्रेंट अरब्स थे, तो उनका ना, उस शादी का नाम था अरब कल्याणम, शादी का नाम था अरब कल्याणम. ठीक है, ऐड कर लेना नोट्स में. ओके, सो डाइवोर्स के केस में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देयर एंड देन. डेथ के केस में 4 months 10 days इज मैंडेटरी. ठीक है, अब कोडिफाइड लॉ भी देख लीजिए. 1986 लॉ क्या कहता है? कोडिफाइड लॉ के बारे में आपको सबको पता है, तो कोडिफाइड लॉ के बारे में एक पॉइंट बोल दीजिए, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ 1986 एक्ट. 1986 एक्ट वो क्या बोलता है? उसका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 बताता है कि लॉ इज सेम इन केस ऑफ डेथ एंड डाइवोर्स. और वो तीनों लेयर्स आपको पता है, 3 layers. So death is same, death and divorce, law with respect to death, law with respect to divorce is same. ठीक है. Now another complicated segment of iddat is iddat in case of muta marriage. अब ये मुता जो है ना, मुता का एक टाइम होता है जिस टाइम के तहत ये शादी की जाती है. ठीक है, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए मुता मैरिज होती है. मे बी इसका पर्पस भी प्रोक्रिएशन हो सकता है, दूसरा प्लेजर सीकिंग के लिए हो सकता है, और इसको रिकॉग्नाइज सिर्फ शिया में किया गया है, शिया लॉ के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है, अब मुता के मैरिज में भी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कंज्यूमेशन और दूसरा इद्दत. ठीक है, मुता मैरिज ऐसा है कि इसमें 4 महीने की अवधि भी है, 4 months 10 days, मतलब 4 महीने जब मैं बोलूं तो इसका मतलब है 4 months 10 days. और इसमें कुछ टर्म्स हैं, दैट इज 2 MCs, 2 menstrual cycles. 2 menstrual cycle का मतलब ये तब है व्हेन द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड. ठीक है, सो इफ द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, इफ द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड, 2 months, ठीक है, 2 साइनोडिक मंथ्स. लिख लीजिए मुता मैरिज. मुता मैरिज के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं. मुता मैरिज में एक फिक्स टर्म के लिए 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए मुता मैरिज का करार हो गया है. ठीक है, अब उसके तहत क्या होता है? उसके तहत Shia law has recognized it. It may be for pleasure seeking. One can have n number of muta marriage. ठीक है, लिख लीजिए. If the husband dies before the completion of muta period, if the husband dies, चाहो तो पॉइंट फॉर्म में लिख लेना इसको. If the husband dies before completion of muta period, इफ द हस्बैंड डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मुता पीरियड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है. मुता का मतलब क्या है, वली का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं ये. ठीक है, कमेंट करो उसके ऊपर. अब मुता मैरिज के बारे में बताइए, और फिर उसके सब टॉपिक्स बता देना. उसमें एक सब टॉपिक बताना इद्दत, एक टॉपिक बनाना मेंटेनेंस. ठीक है, मुता मैरिज का लिख लीजिए. If the husband dies before the completion of iddat, before the completion of muta period, before the completion of iddat, so husband has died, muta period not completed, then 4 months 10 days. ठीक है, then the iddat will be of 4 months 10 days. ठीक है, if the marriage dissolves, पहला केस हो गया हस्बैंड की मृत्यु बिफोर द मुता पीरियड. दूसरा, if the marriage dissolves
before the muta period, before completion of muta period. If the marriage dissolves before the completion of muta period, so marriage has dissolved, iddat will be 2 menstrual cycle. Iddat will be for 2 menstrual cycle. If she is subject to menstrual cycle, and 45 days if she is not subject to menstrual cycle. So if the marriage is dissolved before the completion of muta period, then 2 menstrual cycle, and if she is not subject to menstrual cycle, then 45 days. ठीक है. It is recognized by Shia if the wife is pregnant, if the wife from the muta marriage is pregnant, till the termination of pregnancy, that is delivery or termination. ओके. सो मुता मैरिज में इंपॉर्टेंट क्या है? मुता मैरिज में पीरियड ऑफ मुता इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द मैरिज इज डिसॉल्व्ड, इफ द हस्बैंड डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मुता, 4 months 10 days. If the marriage is dissolved, iddat will be 2 months, 2 menstrual cycle, that is 2 menstrual cycle, and 45 days if she is not subject to menstruation. Okay. Now few important points with respect to iddat. लिख लीजिए कुछ important points. Now what is the status of a marriage which is done during iddat? इद्दत के दौरान अगर शादी हुई है किसी औरत की, तो what will be the consequence? शिया और सुन्नी. If the marriage is done, marriage of a Shia woman is done within iddat, during iddat, so it will be a void marriage. सुन्नी में क्या है? It will be a irregular marriage. Irregular marriage का मतलब है she will be asked to observe iddat and then she can marry. Irregular मतलब है उसको rectification उसके available है. A marriage done during iddat by a woman will be void in Shia and irregular in Sunni. ठीक है. Another important point, ये सब objective types में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं. If the marriage is not consummated, then in the case of death, if the marriage is not consummated, so marriage हुई है, marriage consummate नहीं हुई है, the marriage has not been consummated and the husband dies. ठीक है. So iddat will be for 4 months 10 days, 4 महीने 10 दिन. But upon divorce there will be no iddat. ठीक है. So marriage हुई है और कंज्यूमेशन हुआ नहीं है, तो इद्दत पीरियड कितनी है? 4 महीने 10 दिन. मैरिज हुई है, कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और डाइवोर्स हो गया है, तो नो इद्दत. इसके पीछे रेशनल आपको पता ही है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंजर्विंग द पैटर्निटी, कंजर्विंग द प्रेगनेंसी. ठीक है. एक और महत्वपूर्ण चीज है, मैरिज हुई है और हस्बैंड को इद्दत डिनाई करनी है. इस केस में क्या होगा? फिर क्या कहेगा वो?
can you repeat again? सेकंड केस जो है, मैरिज हुई है, कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और डाइवोर्स हो गया है, और और हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस वगैरह देना नहीं चाहता, डवर भी पे नहीं कर, मेंटेनेंस नहीं देना चाहता बेसिकली। क्या कहेगा वो? कौन सा एक पॉइंट प्रूव करेगा वो सेकंड सिनेरियो में? हस्बैंड डू नॉट वांट टू गिव मेंटेनेंस in accordance to 1986 Act. इस केस में हस्बैंड क्या प्रूफ करेगा? नाइनटीन 1986 एक्ट के हिसाब से क्या था मेंटेनेंस का रूल? बता सकते, बताइए कोई। अरे भाई, It was only limited till iddat period. वेरी गुड। बताइए फिर अब इसमें क्या होगा? हस्बैंड को क्या एक बात प्रूव करनी पड़ेगी? Consummation of marriage. कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कैसे प्रूफ करेगा वो बताओ? प्रूफ कैसे करेगा कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज? आंसर चाहिए मुझे। कंज्यूमेशन कैसे प्रूफ करा जा सकता है? Consummation वैसे तो cohabitation से ही प्रूव होता है। क्या कहते हैं उसको? वैलिड। वैलिड रिटायरमेंट ठीक है, ख्यातुल या ठीक है। सो हस्बैंड यहां पे वैलिड रिटायरमेंट प्रूव कर देगा और वुमेन क्या डिनाई करेगी? Cohabitation. वुमेन कोहेबिटेशन डिनाई करेगी। तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लो। सो हस्बैंड विल बी प्रूविंग कितवातुल सैया, हस्बैंड विल बी प्रूविंग विद वैलिड रिटायरमेंट, और वुमेन जो है वो कोहेबिटेशन डिनाई करेगी। क्वेश्चन आ सकता है डीजे, वो राजस्थान जुडिशियल अक्सर पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि दोनों साइड की प्ली बना लो, दोनों प्रिपेयर WS, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे? तैयारी करेंगे उसकी भी, डोंट वरी, मगर थोड़ा सा स्मार्टली रहना पड़ेगा यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि प्रिपेयर अ पिटीशन फॉर अ मुस्लिम वुमेन, बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने। राजस्थान जुडिशियल की एक बहुत अच्छी बात है कि वो फैक्ट्स भी आपसे प्रेज्यूम करने को बोल देते हैं कि फैक्ट्स भी प्रेज्यूम करो और हमें एक जजमेंट लिख के दे दो। सो अपना WS लिखो, अपना प्लेंट लिखो, अपना WS लिखो और फिर अपना जजमेंट लिख दो। तो फैक्ट्स भी अपने आप प्रेज्यूम कर सकते हो, मगर अगर लॉ ही नहीं पता है हमें तो हम कैसे लिखेंगे? तो राजस्थान जुडिशियल यहाँ पे लिबर्टी देता है, जो MP नहीं देता, और कोई एग्जाम नहीं देता, राजस्थान जुडिशियल देता है सिर्फ उनको ये लिबर्टी। ठीक है, ओके, लिखिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस देने का मन नहीं है तो वो तो यही प्रूव करेगा ना कि कोहैबिटेशन हुआ नहीं, क्योंकि अगर कोहैबिटेशन नहीं होगा तो फिर इद्दत किस लिए होगा अगर डिवोर्स हो गया तो, और जब इद्दत नहीं है तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं देगा। तो हम लोग उल्टी चीज नहीं बोल रहे हैं इसमें। ये वाला जो केस है कि हाँ ये जो कोहैबिटेशन हुआ नहीं है, हाँ, तो हाँ वो तो इस, हस्बैंड बोलेगा ना कि कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, वाइफ ठीक क्यों है, बोलेगी? हाँ ठीक है, सही बात है। मतलब ये है, शादी हुई है, मैरिज हुई है, और इसमें तो डाइवोर्स हो गया है, मैरिज डाइवोर्स हो गया है, कोहैबिटेशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो हस्बैंड क्या बोलेगा कि भाई कोहैबिटेशन हुआ है। हस्बैंड अगर ये बोलेगा कोहैबिटेशन हुआ है, तो उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा ना,
यहाँ पे जनरली जो एप्लीकेशन जाएगी वो 1939 में ही जाएगी। एप्लीकेशन 1939 में जाएगी, FASKH, फस्क के थ्रू, ठीक है। एनीवेज मेंटेनेंस तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा केस भी होता है ना तो मेंटेनेंस तो उसको देना ही पड़ता है। क्या नाम है उसका, 125 में मांग सकती है वो। यहाँ पे इद्दत वाला पॉइंट जो है मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे इद्दत वाला पॉइंट नहीं है। बस ये याद रखना है कि जहाँ पे भी कोहेबिटेशन वाली जो बात होगी ना, कोहेबिटेशन की बात होगी तो कोहेबिटेशन से आप कंज्यूमेशन प्रूव कर सकते हो। प्रूफ क्या मतलब, कोर्ट विल बी प्रिज्यूमिंग, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट द मोमेंट कोहेबिटेशन इज प्रूव्ड, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट, ठीक है। सो कंज्यूमेशन एज पर कंज्यूमेशन प्रूफ नहीं है जिसमें आपको कोई एम्बलम दिखाना पड़े कि भाई इसकी वजह से ये देखिए, इसकी वजह से इससे अप्रूव होता है कंज्यूमेशन, ऐसा नहीं है कहीं भी, जैसे डार्क एजेस में होता था। यहाँ पे इस्लामिक लॉ में और इस्लामिक लॉ में, हिंदुइज्म में तो कोई खैर कोई नहीं है, हिंदू लॉ में ऐसा कोई पॉइंट, मगर इस्लामिक लॉ में कंज्यूमेशन का कोई टोकन आपको प्रेजेंट नहीं करना है, कंज्यूमेशन के लिए सिर्फ कोहेबिटेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इद्दत, that it is not necessary for iddat to commence, it is not necessary for iddat to commence that wife should have the knowledge of the death of the husband, ठीक है। इस बात से ये इंपॉर्टेंट है, सपोज वाइफ को 4 महीने 10 दिन के बाद अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चला, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉम द नॉलेज इद्दत विल स्टार्ट, नो, इद्दत पीरियड हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, इद्दत पीरियड विल ऑलरेडी एक्सपायर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिस, ऑन एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिस, ठीक है। सो इद्दत के बारे में जरूरी नहीं है कि वुमेन को नॉलेज हो। एग्जाम्पल है, इसके ऊपर बहुत अच्छा केस भी था, दैट इज हस्बैंड was in a war and he died, so when the wife came to know about the death, iddat period has been already observed, so it is not necessary for the wife to have the knowledge of the death of the husband, ठीक है। so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग इद्दत, ये कुरानिक लॉ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेनियल लतीफी, पोस्ट डेनियल लतीफी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। द हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग इद्दत एंड इफ ही इज डेड, then maintenance has to be realized from the property. So from the property of the husband the maintenance can be realized, ठीक है। क्योंकि इद्दत के बाद वो क्या नाम उसका, मेंटेनेंस भी है एक तरह से अनसिक्योर्ड डेट ही है, इट इज काइंड ऑफ एन अनसिक्योर्ड डेट, हमने डावर के बारे में पढ़ा है ये चीज। सो मेंटेनेंस इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड डेट ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है। Write another point. If the husband has divorced, ये prior to the law, prior to the legislation है, 2018 legislation है। If the husband has divorced and it is an irrevocable talaq, irrevocable talaq मतलब which cannot be revoked, which is irretrievable. So husband has divorced and it is an irrevocable talaq. Then while she was observing iddat, if the husband dies, ठीक है, so divorce हुआ, irrevocable divorce, irrevocable talaq, and she was observing iddat, यहां पे क्या हुआ, डेथ हो गई। द क्वेश्चन इज विल शी इनहेरिट द प्रॉपर्टी, विल शी इनहेरिट द प्रॉपर्टी, द आंसर इज यस, शी विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। सो शी विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, शी विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड and she will inherit the property of the husband
एंड फ्रॉम द डेथ इद्दत विल स्टार्ट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने डिसाइड किए यहां पे, पहला हेरिट करेगी प्रॉपर्टी, दूसरा डाइवोर्स से इद्दत स्टार्ट नहीं होगी, डेथ से होगी। डाइवोर्स से स्टार्ट नहीं होगी, डेथ से स्टार्ट होगी। इसलिए मैंने जो जो इसका क्या नाम उसका, जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो लिया यहाँ पे कि डेथ हुई है, और तलाक भी हमने सबसे ज़्यादा जो है अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ तलाक के बारे में बात की है, दैट इज इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, दैट इज इररिट्रीवेबल तलाक, दैट इज इररिवोकेबल तलाक, उसकी बात की है यहाँ पे, ठीक है। सो इस केस में द इद्दत पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम डेथ, नॉट फ्रॉम डाइवोर्स। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द हस्बैंड हैज 4 वाइफ्स, मैंने आपको डिस्कस किया है, इफ द हस्बैंड हैज 4 वाइफ्स and he divorces one of them, then husband will also have to observe, then the husband will also have to observe iddat during that period within which the divorced wife will observe iddat. So another 4 months 10 days he cannot marry, he has to observe iddat. So husband also has to observe iddat till the time the divorced wife also observes iddat, ठीक है। So he cannot remarry in such a case, during that period he cannot remarry, ठीक है। सो इद्दत के बारे में इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसके साथ साथ आप सपोर्ट करिए इद्दत को अपने कोडिफाइड लॉ से, ठीक है। सो इद्दत के पास हमारे पास सब्सटैंशियल मटेरियल है, वी कैन आंसर है 10 मार्कर, 10 मार्कर को आंसर करने के लिए पास हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। नाउ सर, हाँ पूछो सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार। मतलब ही कैन नॉट रीमैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड, 4 महीने 10 दिन तक वो शादी नहीं कर सकता। सिर्फ क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द सिनेरियोज इन विच द हस्बैंड कैन ऑब्जर्व इद्दत, तो दिस इज द सिनेरियो जब ऑलरेडी 4 शादी हुई है, 4 में से किसी एक को वो डाइवोर्स देता है। कई कंट्रीज में ये भी एक प्रथा है कि जब वो सेकेंड मैरिज करेगा तो वो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेगा, ठीक है। ऐसे ही सब्सिक्वेंटली तीसरी शादी करेगा तो ऐसी चौथी शादी करेगा तो तीसरी से परमिशन लेगा, इस तरह से, ठीक है। फिर वो 5वीं शादी करेगा तो कौन सी फर्स्ट वीवी जो है वो विल बी आउट ऑफ द वेडलॉक, ठीक है। सो ये दिस डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। 5वीं शादी का तो कहीं नहीं है, पांचवी शादी नहीं, एक्चुअली शादी तो 4 ही होनी है ना, मगर अगर 5वीं शादी होगी तो शिया और सुन्नी के लिए लॉ अलग है, एक में इरेगुलर है, एक में वॉइड है ना। सो इरेगुलर मैरिज को रेगुलराइज कैसे कर सकते हो, एक को डाइवोर्स देके वो ऑटोमेटिकली शी विल कम इनटू द एम्बिट ऑफ 4 मैरिज। ओके, नाउ अनदर टॉपिक। हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. जो आपने लास्ट पर बताया है दैट अगर हस्बैंड भी इद्दत ऑब्जर्व करेगा देन ही हैज टू ऑब्जर्व इट फॉर 4 months and 10 days, राइट। बट जो वाइफ होगी वो तो इद्दत जो सेक्शन 2 ऑफ 1986 एक्ट बोलता है वो उसी के थ्रू करेगी ना, इद्दत उतने टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व करेगी। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है ना। क्यों होगा अलग अलग? सेम है ना, 4 महीने 10 दिन हस्बैंड भी कर रहा है और वाइफ भी कर रही है। तो बट सर जो सेक्शन 2 ऑफ 1986 एक्ट बोलता है वो तो अलग है। वो क्या कहता है? वो यही तो बोलता है। बट वो तो 4 months कैसे हो जाएगा उसके अंदर? 29 दिन, 29.5 दिन और आधा, 29.5 दिन, सॉरी, इससे मिला के एक साइनोडिक मंथ होता है। ठीक है। सो
फोर मैरिज में से 3 रह गई हैं, तो ये वो एक सिनेरियो जिसमें हस्बैंड भी 4 months 10 days, कौन कर रहा है, हस्बैंड, और वाइफ भी सेम टर्म ऑब्जर्व करेगी। क्या डिफिकल्टी है इसमें? सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 यही तो बताता है। सेक्शन 2 सिर्फ 3 लेयर्स पे हमें बताता है, वो कोडिफाइड वर्जन है जस्ट टू मेक द लॉ सिंपल। बट व्हाट वी हैव डन, हमने जो किया है वो बिल्कुल ट्रू लॉ है जो कुरान में बोला गया है, कुरान में जो हदीस में जो बताइए बातें, ठीक है। नाउ प्लीज राइट अ नोट अबाउट कंसेंट। एक छोटा सा नोट लिखिए कंसेंट के बारे में। कंसेंट मीन्स द कंसेंट in the case where the father has been apostate, means the father has converted to some other religion, ठीक है। यानी कि हमने अभी तक एक चीज सीखी है कि जो सबसे अच्छा कंसेंट है वो क्या है, फादर और ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर, है ना। ये केस हमने किया है, फादर ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। अब जो फादर हैं, फादर के प्रेजेंस में ग्रैंडफादर विल बी एक्सक्लूडेड। सपोज फादर इज कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, फादर इज नॉट अ मुस्लिम एनीमोर, सो इन दैट केस ही कैन नॉट गिव अ कंसेंट टू अ मुस्लिम मैरिज। सो दिस इज द केस वेयर द ग्रैंडफादर विल बी गिविंग द कंसेंट। प्लीज राइट डाउन, इफ द फादर कन्वर्ट्स टू सम अदर रिलीजन, if the father converts to some other religion, then as per Muslim law, as per Muslim personal law, ऐसे लिख रहा हूं, as per Muslim personal law, such father cannot give consent, such father cannot give consent, and in such a case grandfather can give the consent, ठीक है। But since the advent of Caste Disabilities Act, since the advent of Caste Disabilities Act, such father can also give consent. Such father can also give consent to a minor marriage. Minor marriage का मतलब है प्यूबर्टी की एज जरूरी है भाई, ठीक है। एज ऑफ प्यूबर्टी इज इंपॉर्टेंट। कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट, अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा इद्दत में, मतलब बहुत ऑब्वियस सा, क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है, नहीं लेकिन तब नहीं, स्टूपिड क्वेश्चन कोई नहीं है। नहीं वो है आपकी क्योंकि मैंने पूछो पहले भी किसी से पूछा हुआ है ये पूछो पूछो क्वेश्चन। पूछो। बेसिक पर्पस है इद्दत का, वो मतलब दिस इज बेसिकली टू फाइंड आउट वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट फ्रॉम द अर्लियर मैरिज और नॉट, एंड टू यस डिटरमिन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। यस। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, ऑल्दो मतलब पर्सनल लॉ है, उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही नहीं स्टैब्लिश हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसमें 3 महीने लगाने वाली क्या बात है? चलो ये अब मुझे अब पूछा है तो बता ही देता हूं, देखो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये शिया समझो और शिया सुन्नी समझो, इसके लिए अलग पेज डेडिकेट करना पड़ेगा। देखो, आप लोगों से मैंने सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस से डिस्कस किया है, नहीं किया है तो बताता हूं। कोई भी, सपोज द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है, एंड द वुमेन बिगेट्स एनी चाइल्ड विच इज बोर्न विद इन 280 days, 280 दिन के भीतर कोई भी बच्चा पैदा होता है, सो द पैटर्निटी विल बी बेस्टोर्ड ऑन द चाइल्ड, ऑन द पर्सन टू हुम द वुमेन इज लास्ट मैरिड। 280 दिन हो गए, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि एक है हस्बैंड और वाइफ हैं और दे हैव कंप्लीटेड द सप्तपदी, 7वां फेरा उन्होंने लिया है, एंड द वुमेन डिलीवर्स, सो इन दैट केस द पैटर्निटी विल बी बेस्टोर्ड ऑन द पर्सन टू हुम द वुमेन इज लास्ट मैरिड। तो ये है आपका 112 का प्रिजम्पशन।
ठीक है। 112 साथ में एक और चीज बोलता है, दैट इज दिस इज द सिनेरियो वेयर हस्बैंड हैज ओनली वन ऑप्शन दैट ही कैन प्रूव नॉन एक्सेस। वो सिर्फ एक बात प्रूव करेगा कि भाई मैं किसी भी तरह से चाहता भी तो आई कुडंट हैव एनी एक्सेस ओवर दिस वुमन। ठीक है, सो नॉन एक्सेस अगर वो प्रूव कर देता है, अदरवाइज इट विल बी ए कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल लॉ दैट इज 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ऐसा ही आइए आप शिया लॉ में, एनी चाइल्ड born after 2 years, so the paternity will be bestowed on the person to whom the woman is last married. ऐसे ही सुन्नी लॉ में, any child born within 4 years and the woman does not remarry, the paternity will be bestowed on the child, the paternity will be bestowed on the person to whom the woman is last married. ठीक है, सो ये आपकी रेवोल्यूशंस के द्वारा दिए हुए लॉ हैं ये वाले, और ये हमने खुद बनाया है। तो देख लो, ये तो फिर भी जस्टिफाइड है। करीबन ये कितने 280 दिन, करीबन 9 महीने के आसपास बैठते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने, सर स्टीवंस ने बनाया है वाला कानून, और इन सारे लॉज में विरोधाभास है। ऐसे में 112 विल सुपरसीड। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज कंफ्यूज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डज नॉट नो वेदर टू इंटरवीन इन दिस मैटर और नॉट। ठीक है, एक और चीज, लास्ट ईयर एक जजमेंट आया है जिसके हिसाब से देखो, ये 280 दिन का जो वो है ना, ये वाला जो केस मैंने बताया आपको कि वुमेन डिलीवर्स द पैटर्निटी विल बी बिस्टोड ऑन द पर्सन टू हुम द वुमेन इज लास्ट मैरिड, तो इससे शादी हुई है आखिरी बार। तो अब एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे में 2017 से पहले, 2017 से पहले जो डीएनए टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट आप बहुत ही स्पेरिंगली ऑर्डर करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अदरवाइज इट मे लीड टू इमीडिएट बास्टर्डाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड लीडिंग वुमेन टू बी अनचेस्ट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। मीन्स इट मे लीड टू इमीडिएट बास्टर्डाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड कंसिडरिंग वुमेन टू बी अनचेस्ट। ठीक है, अब इस पे कुछ लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर के बिना डीएनए टेस्ट करा लिया। सो 2017 से पहले क्या स्टेटस था? 112 गेव अ कंक्लूसिव प्रूफ। 112 का जो वो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, मीन्स इट कैन नॉट बी रिवर्टेड। बट इफ द पर्सन हैज डन अ डीएनए टेस्ट आउटसाइड द कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देन व्हाट टू बी डन? एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, एक आपके पास सिर्फ प्रजम्पशन है। क्या किया जाए? तो ऐसे में स्टेटस जो था वो 112 का ऊपर था, मगर 2017 से बाद में क्या बोला गया है कि भाई साइंटिफिकली अगर प्रूव हो गई है चीज, मीन्स इफ द कोर्ट हैज नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग एंड द हस्बैंड हैज डन अ डीएनए टेस्ट आउटसाइड द कोर्ट्स ऑर्डर, इन दैट केस दैट डीएनए टेस्ट इज एक्सेप्टेबल। तो अब चीजें थोड़ी सही होंगी, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन वाले लॉ हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें? 2 साल 4 साल तो वही नहीं है, वो 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद पता चल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मगर उसको इंश्योर कराए। देखो डाइवोर्स वाला जो केस है वो तो ठीक है, मगर डेथ वाले केस में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इट इज काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट विच इज शोन टू द हस्बैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सुन्नी में अगर जैसे इसने इद्दत पीरियड भी ऑब्जर्व किया और उसके बाद मतलब शी डज नॉट रीमैरी, लेकिन अगर 4 इयर्स के अंदर अगर वो प्रेग्नेंट होती है तब भी वो लास्ट हस्बैंड का बेबी कहलाएगा। एक मिनट रुको, अभी सब लोग अभी आ रहा हूँ।
एक मिनट एक मिनट। ठीक है, एक एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, फैजी से पढ़ रहा हूं एक, ठीक है, सुनो आप लोग, नोट्स मत बनाना। अंडर मुस्लिम लॉ, a child who is born after 6 months from the day of contracting a marriage is presumed to be a legitimate child unless it is a premature child, and provided that the father does not disclaim the paternity by adultery। ठीक है, सो फादर के ऊपर है। where it is born within 6 months, the child is born within 6 months, where it is born within 6 months of marriage, it is an illegitimate child। But if there is a confusion with respect to the date or time of nikah, it can be cleared by an acknowledgement of the paternity of child। ठीक है, acknowledgement जो जो उसका सब्स्टिट्यूट है एडॉप्शन का। ओके, अब ये 2 years और 4 years वाली बात। देयर इज अ कंसेंसस ऑन द इशू अंडर सुन्नी एंड शिया लॉ। सो सुन्नी और शिया में एक कंसेंसस है, इसको फर्दर मैं क्लियर करूंगा। अभी देखो 2 साल और 4 साल काट दो अभी। देयर इज अ कंसेंसस ऑन दिस इशू अंडर सुन्नी एंड शिया लॉ अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। शिया रिगार्ड्स द चाइल्ड एज लेजिटिमेट। सो शिया के हिसाब से लेजिटिमेसी कब तक है? लेजिटिमेसी इफ इट इज born within 10 lunar months, यानी कि 10 into 29.5, 10 lunar months। और सुन्नी में हनीफी हो गए। हनीफी इट इज born within 2 years, एंड शफी और मलिकी ये भी सुन्नी हो गए। शफी एंड मलिकी इट वॉज born within 4 lunar months, 4 lunar years, सॉरी। ये 2 lunar years हैं, ये 4 lunar years हैं। तो ये मैंने आपको कुरानिक वर्ड्स बाय द इस्लामिक डॉक्टर आपको बताए हैं। सो ये स्टेटस है। तो ये रेवोल्यूशन वाला लॉ है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। शादी अगर डिसॉल्व हो गई है और शादी दोबारा नहीं हुई है, ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि भाई वो तो फौरन पहुंच जाएगा अपनी क्लेम करने के लिए, है ना। सो डिसोल्यूशन बाय डेथ है। डिसोल्यूशन बाय डेथ है क्योंकि हस्बैंड के पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हस्बैंड कैन डिनाई लियान। लियान का मतलब होता है एडल्ट्री। लियान का मतलब होता है एडल्ट्री, ठीक है। सो हस्बैंड कैन पुट लियान चार्जेस कि ये भी एक कोजेंट ग्राउंड था जिसकी वजह से मैं तुमको तलाक दिया, जिसकी वजह से मैं तुमको शादी डिसॉल्व करी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, सुन्नी के ये 2 जो हैं, इसमें जो टाइम जो है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। सो वो क्लेम करेगी कि भाई इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करवाऊंगी मैं अपने बच्चे को, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो इसमें हस्बैंड हैज एन ऑप्शन टू क्लेम लियान, ठीक है। ही कैन एक्यूज फॉर इस किताब का यूज नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, ठीक है। हलाला, नेक्स्ट टॉपिक इज हलाला। ये हम करेंगे जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना,
हाँ, इनहेरिटेंस में मैं एक चंक पढ़ाऊंगा इसके बारे में. ओके. पैटर्निटी बहुत बड़ा टॉपिक है. यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ये पैटर्निटी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर उस पर चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है. पूरे लीगल सिस्टम में, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कुछ 4 या 5 जगह है कंक्लूसिव प्रूफ्स. 4 या 5 कंक्लूसिव प्रूफ्स हैं जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. एक आईपीसी में मिल जाता है, दैट इज सेक्शन 82. चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन डू नो रॉन्ग. इस अटल सत्य को कोई भी झुटला नहीं सकता. ऐसे ही सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे ही सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे ही सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी, ऐसे ही है एक सेक्शन 40 से लेके 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज प्रीवियस जजमेंट 40 है स्पेशली. सो ये 5 चीजें हैं जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है, उसके अलावा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं. ठीक है. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी डिफिनीशन है. कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है. हलाला के बारे में क्या है, देखो. हस्बैंड 1 एंड W शादीशुदा हैं, डाइवोर्स हो गया. शी ऑब्जर्व इद्दत ऑफ 4 months 10 days. Husband develops conscience and he wants to remarry. So वो क्या कर सकता है, वो कोहैबिट कर सकता है विदाउट ऑब्जर्विंग इद्दत, विदाउट ऑब्जर्विंग हलाला. ठीक है. तो ऐसे में शिया में और सुन्नी में अलग लॉ है. एक में तो वॉइड है, एक में इरेगुलर है. यानी कि हलाला एनीवेज आपको रेगुलराइज करने के लिए हलाला ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा. ठीक है. अब क्या होता है, नाउ हाउ हलाला इज एक्सरसाइज्ड. जो डाइवोर्स्ड वाइफ है उसकी फिर से शादी कराई जाएगी और शी हैज टू कंज्यूमेट दैट मैरिज. अब कंज्यूमेशन प्रूव करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं. कंज्यूमेशन प्रूव कराने के लिए तरीका क्या है, आप करा सकते हैं कोहैबिटेशन. Then after that she will observe iddat 4 months 10 days. Then this husband will consummation के बाद डाइवोर्स करेगा, फिर वो 4 months 10 days का इद्दत पीरियड्स ऑब्जर्व करेगी. Then this husband can marry. अब प्रॉब्लम ये है, अगर सिर्फ कोहैबिटेशन से प्रूव हो रही है चीज तो ठीक है. इफ कंज्यूमेशन is exercised, if consummation is exercised in its literal sense, it means it will be very oppressive towards women. That is why petitions are lying before the court. ठीक है. कम से कम 15-16 इस्लामिक कंट्रीज ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इसको अच्छा लॉ नहीं मानता. सो इंडिया में अभी भी है, इंडिया ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है. सो मोरक्को हैज डिक्लेयर्ड इट, सोमालिया में डिक्लेयर किया गया है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पे हलाला को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम द सेकेंड मैरिज इफ देयर इज अ चाइल्ड, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दैट चाइल्ड. इसके बारे में कहीं बोला नहीं गया है कुछ भी. सो व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ चाइल्ड. दिस चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट और नॉट. मीन्स क्या तो वो इलेजिटिमेट होगा. दूसरी बात है कि किसकी प्रॉपर्टी से वो इनहेरिट करेगा, अब इसके बारे में लिखिए आप लोग हलाला के बारे में. इफ द हस्बैंड H एंड वाइफ W, if the husband divorce his wife W, and after that he wants to remarry, and afterwards he wants to remarry her, then the wife first of all has to maintain the iddat.
for that divorce, iddat of that divorce, has to maintain the iddat of that divorce. Thereafter she will get remarried. She will get married to some other person and consummate that marriage. Such consummation will be presumed by, such consummation may be presumed by mere cohabitation, by way of valid retirement, thereafter there has to be a divorce in that marriage. And then the iddat of second marriage shall be maintained. And it is only then remarriage between husband and wife can be done. It is only then remarriage between husband and wife can be done. Remarriage between husband and wife can be done. ठीक है. सो ये आपको मिलता है हलाला. पैराग्राफ चेंज करिए. इफ either of the stages of the above proceeding is not fulfilled. If either of the stages of the above proceeding is not fulfilled. If either of the stages of the above proceedings are not fulfilled, then in Sunni such remarriage will be irregular. And in Shia it will be void. However, if the above requirements are fulfilled, but the marriage between husband and wife was not performed. Rather, without getting formally married, if husband and wife starts cohabiting, this will be the case of no marriage. क्वेश्चन पूछा भी गया इसके ऊपर. This will be the case of no marriage. This will be the case of void, irregular नहीं. This will be the case of no marriage. And no legal incidents of the valid marriage will be followed. ठीक है. So children born out of हलाला legitimate होते हैं. They inherit from the property of the second husband. ठीक है. ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लीजिए. अब एक केस लिखो आप लोग. सर हाँ. सर एक मिनट रिपीट कर दीजिए. हलाला के जो बच्चे हैं वो सेकंड हस्बैंड से इनहेरिट करेंगे. लेजिटिमेट है क्योंकि प्रॉपर शादी हुई है. ठीक है. दुर्भाग्य की बात यह है कि हलाला जो चीज़ है ना, हलाला को ऑपरेसिव क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो ऐसा है ना, शादी में कई सारे प्रोहिबिशंस हैं. प्रोहिबिशंस ऐसे हैं कि आप अपने जो स्पाउस के जो फादर हैं उससे आप शादी नहीं करवा सकते. प्रोहिबिशन है ये, एब्सोल्यूट.
कॉन्सेंग्यूनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। ठीक है। अब ऐसे में अगर ससुर के साथ शादी करा दी गई है तो ये गलत बात है बहुत। ऐसे में सिस्टर के हस्बैंड करते हैं कई बार शादी। सिस्टर के हस्बैंड शादी कर लेते हैं कई केसेस। मौलवी। मौलवी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है। और सबसे दुर्भाग्य की बात होती है दे डिनाई टू गिव डाइवोर्स। तो ऐसे में जो सिचुएशन होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है। जैसे जजमेंट, And सुनो, जैसे केसेस मैंने पढ़े ना वो बता रहा हूं मैं आपको। हाँ बोलो। सर जो ये केस है हलाला वाला कि द हस्बैंड वांट्स टू रीमैरी द वाइफ एंड बट वाइफ कैन डिनाई ना दैट शी डज नॉट वांट टू रीमैरी हिम। हाँ वो तो कबूल का बात है ना, इजबो कबूल की बात है। हाँ। ओके। सर, हाँ वो जो इसमें सेकंड मैरिज होती है वो मुता मैरिज हो सकती है? अच्छा, इसके बारे में लिख लो एक चीज। एक तो यह है कि जो जो प्रोहिबिशंस होती है ना, अगर सेकंड मैरिज में प्रोहिबिशंस हैं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज। एक वाला पॉइंट ऐड कर लेना। और मुता मैरिज की बात कर रहे हो सिद्धार्थ, मुता मैरिज सिर्फ शिया में अलाउड है ना। ओके सर। ठीक है। और वो भी गुड फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है। गुड फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है। जैसे गुजरातियों में एक शादी होती है, इसको क्या कहते हैं, अरे यार, मैत्री विवाह। तो उसमें क्या होता है कि टाइम होता है ऑफ कोहैबिटेशन, और उसमें क्या होता है कि भाई इतने टाइम के लिए आपको साथ में रहना है एंड द पर्पज इज चाइल्ड। ठीक है। एक बच्चा चाहिए होता है, इसलिए वो शादी रहते हैं, मतलब मैत्री विवाह कहते हैं उसको। तो गुजरातियों में वो है, ये काफ़ी वो है गुजराती सोसाइटी में। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। और किसके ऊपर बेस्ड है? केस का नाम है गुलाम सकीना। गुलाम सकीना वर्सेस फतेह शेर, 1950 लाहौर। 1950 लाहौर। ठीक है। अब केस लिखो आप लोग। अ 3 month old गर्ल, 3 महीने की बेटी की शादी कर दी गई है। अ 3 month old गर्ल married to a 12 years old male, 12 years old male. Both stayed together for some times. Both stayed together for some time before the girl attained puberty. Before the girl attained puberty में देखो 15 years लिखो। Before the girl attained 15 years. At the age of 17 years. At the age of 17 years, she wants to repudiate the marriage. At the age of 17 years, she wants to repudiate the marriage. Will she succeed? ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एट द एज ऑफ 15 years शी वॉन्ट्स टू रिपुडिएट, विल शी सक्सीड? सो मुझे दूसरे वाले का आंसर बताओ पहले आप। एट द एज ऑफ 15 years शी वॉन्ट्स टू रिपुडिएट, विल शी सक्सीड? टीन में तो she will be able to repudiate. 15 में
हम्म। ठीक है। लेकिन बियॉन्ड 15 अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज शायद बाय मतलब जो लेजिस्लेटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग शी विल बी एबल टू रेपुडिएट, ठीक है, बट हैबिटेशन प्रूव हो जाता है एंड बियॉन्ड 18 ईयर्स शी चलो वुड उसमें नॉट एक बी एक एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, आंसर इन अकॉर्डेंस टू 1939 एक्ट। अब बताइए, आंसर इन अकॉर्डेंस टू 1939 एक्ट। हाँ, तो एज पर 1939 एक्ट तो अप टिल 18 ईयर्स शी कैन रेपुडिएट। ठीक है, दो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दिया हुआ है चीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें जो भी कोहेबिटेशन के ऊपर अगर हमें कोई फंसाए ना, तो सिर्फ प्यूबर्टी से पहले का कोहेबिटेशन देखना है। प्यूबर्टी से पहले का अगर कोहेबिटेशन है तो इमेटीरियल है, प्यूबर्टी के बाद का अगर कोहेबिटेशन है देन वैलिड रिटायरमेंट, प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड रिटायरमेंट विल बी काउंटर, विल एक्ट एज अ काउंटर। ठीक है, सो प्यूबर्टी के बाद का कोहेबिटेशन है तो इट इज एज गुड एज अ कोहेबिटेशन, तब कितवातुल सैया वाला प्ली लिया जा सकता है एज अ काउंटर, हस्बैंड ले सकता है। मगर अगर किसी भी तरह से कोहेबिटेशन प्यूबर्टी से पहले हुआ है तो इट इज इमेटीरियल, वो किसी भी लिहाज से काउंटर नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके ऊपर आंसर जजमेंट फॉर्म में। इन द केस ऑफ मैरिज ड्यूरिंग माइनॉरिटी, इन द केस ऑफ मैरिज ड्यूरिंग माइनॉरिटी, in the case of minority, in the case of marriage during minority of a girl, section 2 clause 7 of Muslim Dissolution of Marriage Act, Muslim Dissolution of Marriage Act 1939 gives right to Muslim women, gives right to Muslim women to repudiate the marriage, to repudiate the marriage and obtain divorce, and obtain divorce upon attaining the age of puberty, upon attaining the age of puberty, that is 15 years, 15 years up till before the age of 18 years, up till 18 years, provided the marriage has not been consummated, provided marriage has not been consummated before such repudiation, before such repudiation, after attaining puberty, after attaining puberty। ठीक है, इस तरह से लिखना है जजमेंट। द ओनली इशू टू बी डिटरमाइंड इन दिस केस, the only issue to be determined in the present case is whether such consummation, whether such consummation will take away her right, whether such consummation will take away her right, which will take away her right to repudiate, was happened or not, was happened or not। ठीक है, यहां पे इशू आ गया, was happened or not। ठीक है, अब इस पे इशू को जजमेंट लिखो कैसे, फॉर कंज्यूमेशन, टॉपिक मत बनाना, जजमेंट इशू इस तरह से नहीं, आंसर में ही जजमेंट की तरह आ रही है फील। ये है दिल्ली जुडिशियल्स के लिए आंसर लिखने का स्टाइल। फॉर कंज्यूमेशन एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, for consummation actual marital sexual intercourse need not be proved, rather mere cohabitation, rather mere cohabitation raising the presumption of valid retirement, rather mere cohabitation raising the presumption of valid retirement, ब्रैकेट में कितवातुल सहिया, ऐसे HIYAH, सही या, rather cohabitation raising the presumption of valid retirement, that is kitwatul sayya will be sufficient, will be sufficient। ठीक है, however such presumption will arise,
however such presumption will arise only however such presumption will arise only when cohabitation was done only after the age of puberty, only after the age of puberty, only after the age of puberty, as before such age child is presumed not to be capable of procreating children. ठीक है, child is presumed not to be able to procreate children. ठीक है, full stop. The burden of proof is on the husband to prove cohabitation. The burden of proof will be on the husband to prove cohabitation. ठीक है, full stop. जजमेंट लिखो. अब क्या है जजमेंट? In this case the said burden of proof has not been fulfilled. The said burden of proof has not been fulfilled by the husband, या फिर लिख लो by the respondent or by the husband. The cohabitation before puberty is, दोनों ही केस में देख लेना. The cohabitation before puberty is unconsequential. With respect to consummation, for the purpose of section 2 clause 7 or for any other legal purpose, accordingly the petition will be decreed in her favor. Petition will be decreed in her favor. ठीक है, इस तरह से आप जजमेंट फॉर्म में लिखोगे आंसर. अच्छा, कल जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर लिखवाऊं क्या, या आप लोगों ने लिख लिया है? एक मॉडल आंसर का रखा हो तो लिखवाए तो. कल का क्वेश्चन सॉल्व आ गया था. चलो लिख लो एक ऐप. हाँ लिखना. क्वेश्चन ये था कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी. हस्बैंड ने क्या किया, डाइवोर्स दे दिया. और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के लिए क्या होता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी उसने एक्सरसाइज किया, और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करने के बाद ही रिपुडिएटेड द मैरिज, हस्बैंड. नाउ फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अ कोर्ट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज किया, शादी उसके हिसाब से रिपुडिएट हो गई और उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, अपॉन डेथ द वाइफ वांट्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी. विल शी सक्सीड? So the answer was she will succeed because the marriage has not been repudiated in its true sense, because the court order is required. The court order is required and the question was silent about it. ठीक है, ओके. इसके ऊपर लिख लो आप लोग. एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किस तरह से अप्रोच करना है. The main point in this case, the main issue in this case is whether the marriage between husband and wife, कल वाला क्वेश्चन है, the marriage between husband and wife was subsisting at the time of the death of the husband. ठीक है, the fact to be highlighted is, ये पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, the point to be highlighted is that husband repudiated the marriage, The fact to be highlighted is
The fact to be highlighted is the husband repudiated the marriage upon attaining puberty. Upon attaining puberty, but it is not proved. But it is not proved. But it is not proved that she has obtained the requisite. That she has obtained the requisite order from the court, as it will, as she has not obtained the order of the court so as to give finality, so as to give finality to that repudiation, so as to give finality to that repudiation. The option of puberty, that is the option of puberty, that is the choice to repudiate the marriage. The option of puberty, that is the choice to repudiate the marriage. The option of puberty, that is the choice to repudiate the marriage on attaining puberty, that is 15 years. That is 15 years, was properly exercised in the present case. Was properly exercised in the present case, as the marriage was not consummated. As the marriage was not consummated after such age. As the marriage was not consummated after such age. And also, it is not stated, and also it is not stated that the marriage of the husband was consented to by his father or grandfather. In that case, bracket में लिखो, in that case the option of puberty would have been automatically lost. ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी नहीं हो सकता तब. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली लॉस्ट. ठीक है, पैराग्राफ चेंज. द बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एसेंशियल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये जजमेंट है, जो मनी पार्ट है जजमेंट का, जो मनी पार्ट है ना, वो है ये मनी पार्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉयर्स यूज करते हैं. सो जजमेंट का जो मनी पार्ट है वो आपको यहां मिल रहा है. बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एसेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, एसेंशियल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एसेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑन सच एप्लीकेशन, एसेंशियल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम सच एप्लीकेशन वॉज ऑब्टेन्ड, lies upon the respondent, lies upon the respondent, that is heirs of H, heirs of husband. ठीक है. So burden of proof that essential order of the court on such application was obtained lies upon the heirs of H. heirs of H कौन है? जो वाइफ को डिनाई करेंगे कि तुम्हें हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे. ठीक है, विच दे हैव नॉट फुलफिल्ड. So burden of proof has not been discharged, which they have not fulfilled as per the facts of the case, as per the facts of the case. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो. Accordingly, the repudiation by husband, accordingly the repudiation by husband for legal purpose, accordingly the repudiation by husband for legal purpose would not be effective, and marriage would be deemed to be subsisting, marriage would be deemed to be subsisting at the time of death of husband, marriage would be deemed to be subsisting at the time of death of husband. Accordingly the said suit shall be
decreed. Accordingly, the said suit shall be decreed in the favor of plaintiff, as she is still the legal heir of the husband. ठीक है, इस क्वेश्चन की मार्किंग क्या है? इस क्वेश्चन की मार्किंग है ये 10 में से 7 मार्क्स फेच करके गया है मार्क्स. ठीक है, दिस इज द आंसर इन द फाइनल टेस्ट सीरीज बाय ए गर्ल नेम्ड मीनाक्षी. ठीक है, सो ये उसका आंसर है जो मैंने आपको बताया. इट इज अ परफेक्ट मॉडल आंसर. वो कब दिया उसने? जब टेस्ट सीरीज हो गया है. तो टेस्ट सीरीज का जो लास्ट टेस्ट सीरीज था उसमें उसने ऐसा आंसर लिखा है. ठीक है, सो 10 में से 7 उसने फैच किए हैं और एग्जाम में तो पता नहीं कितने फैच किए होंगे. शी इज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट. सो मीनाक्षी का आंसर है ये, मैं आपको जो बता रहा हूं. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए. H a Sunni, H husband a Sunni Muslim, H is a Sunni Muslim, divorces his wife by pronouncing तलाक in the irrevocable form. ठीक है, अब देखो ये अब तो लॉ आ चुका है हमारे पास, है ना. सो ये क्वेश्चन आज की तारीख में रिडेंडेंट हो जाता है, मगर ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन से, इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो इसके ऊपर स्टार मार्क कर देना. और स्टार मार्क का मतलब जो है मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि टुडे सिनेरियो में शायद इसका रेलेवेंस नहीं है, मगर अगर क्वेश्चन आ जाए 2018 से पहले के स्टेटस के बारे में, तो ये आंसर का एक्सप्रेशन आपको तैयार करना है. ठीक है, लिख लो. सो 2018 से पहले के कानून के बारे में बोल रहा हूँ. एच अ सुन्नी मुस्लिम divorces his wife, irrevocable talaq. Thereafter he starts cohabiting with her. ठीक है, what will be the legal consequence? बताइए, what will be the legal consequence? Sir, it will be an irregular marriage in case of Sunni. ठीक है, ठीक है. सो दिस विल बी द केस ऑफ नो लीगल इफेक्ट. लिख लो, नो लीगल इफेक्ट. इरेगुलर मैरिज में भी नो लीगल इफेक्ट. अब एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो क्वेश्चन में. ही डाइड लीविंग बिहाइंड चिल्ड्रन. ही डाइड लीविंग बिहाइंड चिल्ड्रन आफ्टर रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन. आफ्टर रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन. ये अभी येस नो में आंसर दो, मगर इसके 30 वर्ड्स के आंसर तैयार रखना. 30 वर्ड्स के एक्सप्रेशन तैयार रखना. ठीक है, ठीक है. देखो असल में क्या होता है, आंसर सबको पता होता है, क्योंकि आप लोग जब तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने का मतलब ये है कि द मोमेंट यू हैव एंटर्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन, आपको लगता है कि मैं तैयारी करूंगा 1 घंटे 2 घंटे, आप जो 4 घंटे की क्लासेस करते हो, सो यानी कि यू डेफिनेटली हैव अ बेंड ऑफ माइंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. वंस योर सिलेबस इज डन, यू हैव डन योर सेल्फ स्टडी, सो येस और नो में तो आंसर दे दोगे. डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी? उसको कंपाइल करने में. सो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना सिलेबस अच्छी तरह से करते हैं और वाद विवाद में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा समझा देते हैं कि भाई क्या कानून आता है इनको, मगर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट, एक्सप्रेशन नहीं है. सो मैं आपसे सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूं कि आप लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए. ये जो लड़की है, ये ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में सोचती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है इंग्लिश में. आज भी वो वैसी ही है, मगर उसकी हिंदी ज़्यादा अच्छी थी और इंग्लिश जो थी वो ग्रामेटिकली करेक्ट थी. ठीक है, अब हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी से इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन, जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो ट्रांसलेशन दिमाग में होता है, वो उसकी स्पीड उसने बढ़ा दी. दैट्स इट. और इस तरह का आंसर लिखा है. तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. सिविल लॉ के पेपर में आई स्कोर्ड 163 आउट ऑफ 200. तो काफ़ी अच्छा मानता था मैं इस चीज़ को, और 160 के आसपास स्कोर आया उसका. सिविल लॉ 2. ठीक है, हरियाणा जुडिशियल्स की बात कर रहा हूँ. हरियाणा में तो फाइनली क्लियर नहीं हुआ उसका, यूपी में क्लियर हुआ है. और 163 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिंदी.
हिंदी उसकी इतनी अच्छी थी, और ग्राम एक पॉइंट था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही, स्पेलिंग मिस्टेक कर रही है, मगर वो है कि जब मेंस का टाइम था तो लॉ तो आपका तैयार हो चुका है, लॉ का रिवीजन चल रहा था, लॉ का टेस्ट सीरीज चल रहा था, लॉ में मेरे साथ जो भी रिवीजन, जिस तरह से भी रिवीजन हो रहा था, टेस्ट देते थे, टेस्ट के साथ रिवीजन चल रहा है। मगर ज़्यादा जो मेहनत की वो बाकी सारे टीचर्स के साथ, जैसे जो हिंदी के जो टीचर्स थे, हिंदी के टीचर, सो हिंदी के टीचर को उसने पूरा निचोड़ दिया कि सर आप मुझे बताइए कि कैसे एस से मुझे लेके आना है। सो ऐसा नहीं कि एस से की टेक्निक आपको मिल जाएगी, शी हैज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन बाय देन। सो अब उस चीज़ को क्या किया, एक तो टॉपिक चाहिए और टॉपिक में मुझे डालना क्या क्या है। ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसमें मटेरियल नहीं होता, तो उन एसेस को कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो लोग हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, ये आपको बता देते हैं। जैसे सपोज गद्य और पद्य आ गया, हिंदी ग्रामर में गद्य और पद्य आ गया, तो कैसे कवि का नाम कैसे निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है। और फायदा क्या हो रहा है आपको, फायदा ये हो रहा है कि आपके सीधे सीधे 15-20 मार्क्स सेट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो हिंदी में उसने बहुत स्कोर किया, ब्रिलियंट स्कोर। ओके, प्लीज राइट डाउन, सॉरी हाँ इसका आंसर लिखिए, बच्चे हो गए उसके। सो द चिल्ड्रन क्लेम इनहेरिटेंस, विल दे सक्सीड, इसका आंसर भी नो है, इसका भी आंसर नो है। आंसर लिख लेना आप लोग, 30 वर्ड्स, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, सुन्नी डाइवोर्स हिज वाइफ, ट्रिपल तलाक, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही अगेन रीमैरिड द सेम वाइफ, सेम वुमेन, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही रीमैरिड द सेम वुमेन विदाउट ऑब्जर्विंग हलाला। Thereafter there was a quarrel. Thereafter there was a quarrel. He again divorced. She was already pregnant. And gave birth to a child. The child and the woman claims maintenance under 125 CRPC. Under 125 CRPC. Husband defends the application that marriage is void, child is illegitimate, wife does not have a right to claim maintenance. This plea will sustain or not? Tell me. This plea will sustain or not? बताइए। So she was formally married to the husband and then she got pregnant, right? नहीं, देखो ऐसा था, पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड एंड वाइफ, फिर डी हो गया, डाइवोर्स हो गया, फिर उसके साथ कोहैबिट करने लगा ऐसे के ऐसे ही, और हलाला ऑब्जर्व नहीं करा, फिर बच्चे हुए। और ये कौन है, सुन्नी। So the kids will be illegitimate, na? Because the marriage will be irregular, then the kid will also be illegitimate. इरेगुलर मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट होते हैं। इट विल बी अ नो मैरिज, सुन्नी क्योंकि में हलाला, हाँ, क्योंकि हलाला तो ऑब्जर्व हुआ नहीं, सो दे सिंपली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। नहीं, सुन्नियों में तो ये इरेगुलर होगी ना मैरिज। और शिया में क्या होता है, शिया में वॉइड होती है, Void. तो इरेगुलर मैरिज है। और बच्चे जो होते हैं वो बच्चे जो होते हैं लेजिटिमेट होते हैं। इरेगुलर मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट होते हैं। दे विल पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन इरेगुलर मैरिज को रेगुलराइज भी तो हस्बैंड को ही करना है ना, अगर बिल्कुल उसने नहीं बिल्कुल, किया और डिवोर्स कर दिया हाँ। अगर तो वो, इरेगुलर मैरिज है तो वो वाइफ को हलाला की प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, वो रेगुलर हो जाएगी।
फिर प्रॉपर निकाह भी होना, यहाँ निकाह भी नहीं हुआ ना। तो वाइफ आई डोंट थिंक सो कि 125 में क्लेम कर पाएगी। बच्चे क्योंकि लेजिटिमेट है एज पर मुस्लिम लॉ, तो बच्चे क्लेम कर सकते हैं एक बार अंडर 125। वाइफ क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएगी? दूसरा क्वेश्चन यही था कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में आती है तो क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस में तो वो कर सकती है रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दैट ऑफ मैरिज। तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लो एक, व्हाट विल बी द स्टेटस इन केस ऑफ डीवी एक्ट। सो डोमेस्टिक वायलेंस में तो 5 तरह की सिक्योरिटीज क्लेम कर सकती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीवी एक्ट में तो कई सारे रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है। बच्चे 125 में कर लेंगे ना क्लेम? बट हाँ 125 में क्लेम करेंगे बच्चे। वाइफ इज इरेगुलर, अभी इरेगुलर है तो रेगुलराइज करेगी, फिर उसके बाद वो क्लेम कर लेगी। इरेगुलर के भी कोई कॉन्सिक्वेंस होते नहीं है, बच्चों के पास ऑप्शन है, ठीक है। वाइफ कैसे रेगुलराइज करेगी इस मैरिज को? दोनों की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, तो वाइफ, हस्बैंड ने हाँ वाइफ ऐसे नहीं, वाइफ ऐसे नहीं कि जाके कि हम हलाला कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेगा। मतलब हलाला तो हलाला तो के पहले लिए हलाला के लिए ना, इट शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम द हस्बैंड। हस्बैंड शोज हिज इंटेंट दैट आई एम रेडी टू टेक यू बैक। हाँ, तो वो तो रेगुलराइज भाई, मतलब रेगुलराइज तो कर ही नहीं सकती वाइफ, क्योंकि हस्बैंड की तो सहमति नहीं है इस मैरिज वो में। ऐसे कोहेबिट कर रहा था, तो इरेगुलर हो रही है, वाइफ क्लेम नहीं कर रही है यहाँ पे, बच्चे क्लेम करेंगे, हम्म। ठीक है। एक मिनट, सेक्शन 125 निकाल लीजिए सब लोग, देख लेते हैं एक बार। है दामनी 125 सीआरपीसी? हाँ, बस एक मिनट निकाल रही हूँ। देखो जरा 125 सीआरपीसी, वरना मैं निकाल देता हूँ, रुको, गलत लॉ ना मिले। निकाल लिया मैंने। देखना उसमें क्या है, मैरिज मीन्स, एक सेकंड। काफी लंबा चौड़ा है, अब इसमें एग्जैक्टली कहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है कहीं। माइनस वाइफ का मतलब दिया हुआ है। हाँ वाइफ includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried. अच्छा, और कुछ है डेफिनेशन? नहीं, वाइफ में इतना ही है। ठीक है। हाँ, तो इसमें वॉइड मैरिज के बारे में मैं बता दूंगा, इसके बारे में इसके और भी इंटरप्रिटेशन है, जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। तो अभी कुछ मैं अच्छी तरह से पता है मगर दिमाग से थोड़ा उतरा हुआ है। इसमें वॉइड मैरिज वाली जो वाइफ है वो इंक्लूडेड नहीं है, मगर इरेगुलर वाइफ का जो है ना वो मैं स्टेटस एक बार ही क्लियर करके बताऊंगा। बच्चे तो फॉर श्योर लेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं ये ग्रुप पे लिख दूंगा, उसके हिसाब से अपना जजमेंट लिख लेना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोहिबिशन। दूसरा टॉपिक है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये है कि शादी जो है, निकाह जो है, वो किन केसेस में आप कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली इस टॉपिक का नाम है प्रोहिबिशन। जैसे हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्रीज होती हैं, जैसे सेपिंड, ठीक है, 4 फिलियल जनरेशन, 5 फिलियल जनरेशंस। सो हिंदू लॉ का अलग कंसेप्ट है, मुस्लिम लॉ का अलग है। मुस्लिम लॉ का जो कंसेप्ट है वो है प्रोहिबिशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोहिबिशंस, वन इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन एंड सेकेंड इज रिलेटिव प्रोहिबिशन। एक हो गया एब्सोल्यूट, दूसरा हो गया रिलेटिव प्रोहिबिशन, ठीक है। रिलेटिव प्रोहिबिशन का मतलब है मैरिज एज मैरिज पर से विल नॉट बी वॉइड। ये लिख लीजिए, रिलेटिव प्रोहिबिशन का मतलब है मैरिज पर से इज नॉट वॉइड, वेयर एज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मतलब मैरिज इज वॉइड। मैरिज पर से इज वॉइड बोथ इन शिया एंड सुन्नी, शिया में भी और सुन्नी में। सो मैरिज पर से इज वॉइड। रिलेटिव का मतलब है मैरिज पर से विल नॉट बी वॉइड, ठीक है। सो रिलेटिव प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोहिबिशन इज देयर शिया, रिलेटिव प्रोहिबिशन इज देयर इन सुन्नी। सो इन शिया द मैरिज विल बी वॉइड। ये चार्ट आपको हेल्प कर सकता है।
सुन्नी में इट विल बी इरेगुलर। ठीक है, अब बाकी सारे टॉपिक्स को रिलेट कर लेना अपने आप। सो प्रोहिबिशन दो तरीके के, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। शिया के केस में इफ देयर इज अ रिलेटिव प्रोहिबिशन मैरिज पर से विल नॉट बी वॉइड। इफ देयर इज अ रिलेटिव प्रोहिबिशन शिया में मैरिज विल बी वॉइड। तो शिया के कानून में येस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट है मामला। और सुन्नी में मैरिज विल बी इरेगुलर इन केस देयर इज अ रिलेटिव प्रोहिबिशन। वो जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो हटवा दो, मैरिज विल बी रेगुलराइज्ड। अब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है वो तीन तरीके के हैं। एक है कुराबत, मुबारत एंड रिजा। कुराबत, मुशारत एंड रिजा। कुराबत इज, इंग्लिश में भी याद रखना ये चीज, हिंदी में वो उर्दू में याद रहे तो ठीक है, नहीं रहती तो अपना ये कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी मतलब सेम ब्लड, इसको कहते हैं कुराबत, QURABAT, कुराबत, कॉन्सैंग्विनिटी। दूसरा है एफिनिटी। एफिनिटी दैट इज MUSHARAT, मुशारत। कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज, FOSTERAGE, फॉस्टरेज दैट इज रीजा। कुराबत, मुशारत एंड रिजा, कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। फॉस्टरेज जैसे दैट इज फॉस्टर ब्रदर एंड मदर। ठीक है, उनके बच्चों से आप शादी नहीं कर सकते। कॉन्सैंग्विनिटी भी समझ में आता है, दैट इज सेम ब्लड रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। एफिनिटी का केस जो है ना, ये समझना पड़ेगा। एफिनिटी का केस क्या है? एफिनिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव्स ऑफ द स्पाउस, रिलेटिव ऑफ द स्पाउस जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशन है, उनको पढ़ लेते हैं अभी। ओके, सबसे पहले इस टॉपिक को करते हैं, रिलेटिव प्रोहिबिशन। रिलेटिव प्रोहिबिशन, ठीक है। सो रिलेटिव प्रोहिबिशन जो है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछा जाएगा, इस पे पूछा जाएगा। लोगों को लगता है कि इसको कोई पढ़ेगा नहीं, मगर ये तो पढ़ना बहुत जरूरी है। रिलेटिव प्रोहिबिशन, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत, सबने पढ़ा है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ हलाला, ठीक है। थर्ड इज हज, ये मैं लिखवाऊंगा अभी, हज। फोर्थ इज अल कफ, अल काफा। फिफ्थ विटनेसेस का मामला जो है, शिया और सुन्नी में आपको पता ही है, शिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, सुन्नी में रिक्वायरमेंट है, इरेगुलर मैरिज। सिक्स्थ इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर रिलीजन मैरिज जैसे, इंटर रिलीजन मैरिज को पढ़ लो कैसे, मैरिज विद अ किताबिया, किताबिया जिनके रिलीजन में एक होली बुक होती है, जैसे कौन कौन से किताबिया, मुस्लिम, मुस्लिम्स आर किताबिया। तो मुस्लिम की बात डेफिनेटली नहीं हो रही यहाँ पे, तो किताबिया मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, दैट इज फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इज क्रिश्चियनिटी, फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इज ज्यू। सो ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि सब लोग पहले ज्यू थे, और फाइनली ओके। दूसरा हो गया फायर वर्शिपर, फायर वर्शिपर जैसे पारसी, फायर वर्शिपर पारसी। तीसरा हो गया आइडल वर्शिपर, वो हो गया हिंदू, हिंदूज आर आइडल वर्शिपर्स। ठीक है, सो तीनों के रिगार्ड में व्हाट इज द स्टेटस। ओके, छठा हो गया। सातवां लिखिए अनलॉफुल कंजुगेशन, ये सब लिखेंगे अभी। अनलॉफुल कॉन्जुगेशन,
अनलॉफुल कॉन्जुगेशन. 8th इज फिफ्थ वाइफ. फिफ्थ वाइफ, ठीक है. ये 8 तरीके रिलेटिव प्रोविजंस हैं. और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द प्रोविजंस. तो क्वेश्चन अपने आप में, अगर ये 5 मार्क्स का है तो बहुत ही मैच्योरली इस क्वेश्चन को हैंडल करना है. ये नहीं कि सबके ऊपर 10-10 लाइन लिख रहे हो, नहीं, बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना है. अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर दिया और बाकी के 10 नंबर के क्वेश्चन टूटे हुए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. सो इद्दत हमने कर लिया है, हमने हलाला कर लिया है. हज इज द टाइम वेयर द पर्सन विल बी वियरिंग ओनली वन क्लॉथ, जिसको कहते हैं एहराम. हज के बारे में लिख लीजिए. एक क्लॉथ जो कि सिला हुआ भी नहीं होता, उसको पहन के वो अपने they observe all the rules of pilgrimage. They observe all the rules of तीर्थ यात्रा के सारे नियमों का पालन करते हैं. ओके, नाउ ड्यूरिंग हज when a Muslim is wearing ihram, लिखिए इसके बारे में, हज के बारे में. when the Muslim is wearing ihram, AHRAM, when the Muslim is wearing ihram, that is single dress, and performs nikah, and if he performs nikah, Shia में such marriage is void, Sunni में it is irregular. So Sunnis में it is irregular, Shia में void है. हज के दौरान अगर शादी होती है while the person is wearing an ihram. हज का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति होली मंथ ऑफ रमजान में जाता है तो हज, और इफ ही गोज इन द एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर, उसको कहते हैं उम्रो, UMRO, ठीक है. सो उम्रो का मतलब है वो किसी भी टाइम में जा सकता है. हज का टाइम है जब वो होली रमजान में जाता है. सो इफ द पर्सन विजिट्स Mecca in the holy month of Ramadan, then it is called as Hajj. सेम जगह है मगर, ठीक है. और उसके जो वो है, क्या नाम उसका जो रिलीजियस फायदा है वो अलग है, जो धर्म में जो बताया गया है वो अलग है. ओके, अल काफा भी बोलते हैं इसको, अल कफ भी बोलते हैं. अल कफा, it is generally required that the marriage of two Muslim should be, it is generally required that the marriage between two Muslims should be between two persons of similar socio-economic status. Between two socio-economic status. However, at present, particularly in Sunni, this rule is not followed. The Sunnis Sunni do not observe this rule. ये भी अल्लाह भाई रूल भाई मुल्ला है एक तरह से. अल कफ. अनलॉफुल कंजुगेशन, विटनेस वाला पॉइंट भी आपको पता है, इंटर रिलीजन वाला पॉइंट मैं बताता हूँ. अनलॉफुल कंजुगेशन. If husband is already married to W, wife मतलब, and marriage is existing. Now if husband wants to marry W1, another wife, if the husband wants to marry W1 and it is found that W and W1 cannot marry, ये डायग्राम बना के समझाऊंगा अभी. that W and W1 cannot marry as they are related, cannot marry due to absolute prohibition. वो आपको पता ही है. Absolute prohibition, that is
कुराबत, मुशारत एंड रीजा, consanguinity, affinity and fosterage. So if W and W1 are related by absolute prohibition, ठीक है, so if either of them had been a male, so if either of them had been a male, so they could not marriage due to absolute prohibition. ठीक है, सुन्नी में क्या है, इरेगुलर है, और शिया में क्या है, वॉइड है. शिया में क्या है, वॉइड है. दिस इज अनलॉफुल कॉन्जुगेशन. ठीक है, देखो ये है हस्बैंड जो है वो, हस्बैंड ऑलरेडी W से शादी किए हुए हैं. हस्बैंड जो है वो W1 से शादी करना चाहते हैं, मगर W और W1 में ऐसा संबंध है कि W और W1 शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. अगर इन दोनों में से कोई भी एक हस्बैंड होता, तो W और W1 शादी नहीं करते. ठीक है, तो ये जो केस है ना, ये अनलॉफुल कंजुगेशन का केस है. दिस इज द केस ऑफ अनलॉफुल कंजुगेशन. शिया में वॉइड है और सुन्नी में वैलिड है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि भाई W के डिमाइस पे W1 से शादी हो रही है और दोनों सिस्टर्स हैं, पॉसिबल है कि नहीं है? कई फिल्म्स में देखा ऐसा होता है. बिल्कुल होता है, बिकॉज वाइफ इज नो मोर, W इज नो मोर. वाइल द मैरिज इज सबसिस्टिंग, W1 से शादी मुश्किल है. शिया में, सुन्नी में इरेगुलर है. ओके, नाउ मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ. मैरिज इन द फिफ्थ वाइफ, दैट इज शिया में इरेगुलर है, सुन्नी में वॉइड है. उल्टा बता दिया, शिया में तो वॉइड है, सुन्नी में इरेगुलर है. बस ये याद रखना, शिया में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो वैलिड है या तो वॉइड है, और सुन्नी में इरेगुलर भी है. ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिज, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. इरेगुलर मैरिज अकेले नहीं पूछा गया है, रिलेटिव प्रोविजन के बारे में पूछा है. सो इंटर रिलीजन मैरिज, सबसे पहला हो गया किताबिया. ठीक है, सो इंटर रिलीजन मैरिज ये टॉपिक है हमारा, और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मेल का. मेल, ठीक है, और पहले पढ़ो सुन्नी का. इंटर रिलीजन मैरिज, क्योंकि हाँ, इंटर रिलीजन मैरिज सुन्नी, मेल. ठीक है, सुन्नी फीमेल. सो सुन्नी मेल, सुन्नी फीमेल. व्हाट इज द कंसिक्वेंस? वैलिड मैरिज. वैलिड को मैं वी लिखूंगा. सेकंड केस, सुन्नी मेल, शिया फीमेल. शिया फीमेल वैलिड. तो सुन्नी मेल किसी भी फीमेल से शादी कर सकता है, शिया सुन्नी दोनों. ठीक है. तीसरा, सुन्नी मेल किताबिया फीमेल. किताबिया दैट इज क्रिश्चियन फीमेल. क्रिश्चियन फीमेल से शादी करता है, या फिर सिख से शादी करता है, सिख फीमेल से शादी करता है, या फिर क्रिश्चियन से शादी करता है. ठीक है, या फिर जू से शादी करता है. किताबिया फीमेल. ठीक है, तो यहां पे लिखो ब्रैकेट में नॉट मुस्लिम. किताबिया फीमेल, शादी इज वैलिड. शादी इज वैलिड. ठीक है, सिखिज्म काट देना. सिखिज्म क्योंकि वो हिंदुइज्म में आती है, सिखिज्म को हिंदुइज्म में इंक्लूड करा हुआ है. ठीक है. 4, नॉन किताबिया. नॉन किताबिया फीमेल. नॉन किताबिया फीमेल, अगर कोई भी नॉन किताबिया फीमेल है तो शादी क्या है? इर्रेगुलर है. इर्रेगुलर है. ठीक है, तो इट कैन बी अ फायर वर्शिपर, इट कैन बी एन आइडल वर्शिपर. तो शादी विल बी इर्रेगुलर.
हिंदू से शादी करता है सुन्नी मेल, हिंदू फीमेल से बात करता है तो पहले उसको कन्वर्ट कराएगा वो। या फिर दूसरा तरीका कोई बता दे वैलिड मैरिज का। स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल स्पेशल मैरिज, मैरिज एक्ट। मगर प्रॉब्लम ये होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में इनहेरिटेंस जो होगा वो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट 1925 के हिसाब से होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। कर दूसरा सुन्नी मेल हो गया, सुन्नी फीमेल कर लो। अब हटाए सो सुन्नी